students, welcome to MDC Learning. Today I am going to teach you the chapter Financial Accounting and the topic is buyback of shares. Now see, students, in the last lecture we have learned about the journal entries in buyback of shares. Now see, this is a limited company and all that. After passing a journal entry, the people will require you to present you the balance sheet. Am I correct? So you should know the pro forma of the balance sheet. And in TY, you have a vertical type of balance sheet. You are always going to answer in the vertical type of balance sheet. So today in this video, I'm going to teach you the basic balance sheet. Whatever I'm teaching you, later on I'm going to give you an Excel of the balance sheet. So it's better you learn it, keep write in your notebook and learn it like a Bible, because it will be useful for every now and then. Come on, let's come to the pro forma. Now see, बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सी, आप लोगों ने पहले टीचर बैलेंस शीट देखा था, उसमें आप लोगों ने क्या देखा था? लाइबिलिटीज और एसेट था. वर्टिकल बैलेंस शीट इज अगेन every time it will be divided into two parts. So the vertical balance sheet is divided into two parts. The two parts are equity and liabilities. See, what are the two parts? The first part is equity and liabilities. Equity and liabilities, and the second one is asset. Okay, so the major two difference on the balance sheet is equity and liability and asset. I think liability and asset के बारे में आपको पता ही है. equity एक नया word add हुआ है. अभी तक आपने जो liabilities and all देखा था, you have learned about sole trading concern, partnership firm and all that. So there only liability was there, and then you used to have a capital account. But when you're talking about a joint stock company, equity plays a very important role. So you have equity and liability, and the second part is assets. Now equity. Again, I'll say that equity is divided into three parts. They are shareholders fund, non-current liabilities and current liabilities. Now see, shareholder fund, as I told you, liabilities first have capital account. So यहाँ पे capital account को किसने replace किया है? shareholders fund ने किया है. Non-current liability मतलब, what do you mean by current? Current मतलब the liability which is changing the figure every day, every month, every time, that is current liability. Non-current मतलब आपने जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी आपको 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, वो आराम से आप उसको पेमेंट करते रहोगे. करंट लाइबिलिटी हर दिन, एवरी टाइम वो चेंजेस होगा. सो हम लोगों ने इक्विटी एंड लाइबिलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. द 3 पार्ट्स इज शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी. अगेन आई रिपीट, सी, बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. व्हाट आर दैट? वेरी गुड. इक्विटी एंड लाइबिलिटी, एंड सेकेंड इज एसेट्स. Equity and liability is again divided into 3 parts. What are that 3 parts? Shareholder fund, non-current liability and current liability. Am I correct? उसके बाद shareholder fund is again divided into 2 parts. What are the 2 parts? Share capital, reserves and surplus. See, share capital. Share capital मतलब, you know what is the meaning of capital? The money invested by the people into the business is called as capital. When you talk about the joint stock company, you have a share capital. What is a share? What do you mean by share? Share is a unit, a small unit in the capital. Am I correct? See, joint stock company में क्या होता है? एक जन पैसा नहीं डालता है, 2 जन पैसा नहीं डाल रहा है, 20 जन पैसा नहीं डाल रहा है. You have lakhs of shareholder. रिलायंस के अंदर आप देखोगे तो lakhs के ऊपर उसके बाद शेयर होल्डर्स है. Am I correct? So that is share capital. अब share capital को हमने अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया है. आप लोगों ने एसपी में ये बहुत अच्छे से पढ़ा है. इक्विटी क्या है? शेयर और प्रेफरेंस शेयर. सी, हम सबको अलग अलग, बिकॉज इन लोग, ये अलग बंदा है, ये अलग बंदा है. इक्विटी शेयर हैज डिफरेंस rules and regulation. Preference share has different, equity share have different rights, preference share have different rights. Equity shareholder gets fluctuating rate of dividend, preference shareholders gets fixed rate of dividend. Preference share is redeemable after some time. Equity share is a fixed capital. So you have studied very deeply about this too in the SP. Am I correct? So share capital को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. What are that 2 पार्ट? इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. फिर दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस. हमने जो पहले से पैसे बचा के रखे, जैसे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हमारा जनरल रिजर्व है, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है, हमारा कैपिटल रिजर्व है, हमारा सिंकिंग अकाउंट फंड है. जिस भी चीज के आगे वर्ड फंड या रिजर्व आता है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस.
See, again we'll repeat. Balance sheet is divided into how many parts? Very good, 2 parts. What are they? Equities and liabilities. Second is asset. Equities, liabilities divided into how many parts? 3 parts. What are they? Shareholders fund, non-current liability and current liability. Shareholder fund is again divided into 2 parts. Share capital and reserves and surplus. Share capital is divided into 2 parts, that is equity and this. Now non-current liability. Now see, मैंने आपको बोला non-current liabilities मतलब long term. See, long-term borrowings. We are talking about long-term borrowings. The long-term borrowings can be in the form of bonds, debentures. आजकल एक नया आ गया है deposits, bank loan. किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया है. So this loan, I think we take it for more than 5 years, 6 years, 10 years. Am I right? So do we call it as long-term borrowing? Then you have long-term provisions. कोई provisions and all you have made it for long-term. That is, for example, here I can give you, you know, when you I have told you about the depreciation. In depreciation, you have provision for depreciation account. That provisions will come here. Okay. So non-current liability में ज्यादातर उधर वही देखो कि लोन होगा, लोन के अंदर आपका डिबेंचर्स आएगा, बैंक लोन आएगा, बॉन्ड्स आएगा. एग्जाम में ज्यादातर आपको ये 4 चीजों पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है. ओके. उसके बाद हमारा आ गया करंट लायबिलिटी. नाउ सी, करंट लायबिलिटी को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है. कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4. व्हाट इज दैट? शॉर्ट टर्म बोरोविंग. बोलो अभी मुझे एग्जांपल क्या है शॉर्ट टर्म बोरोविंग? शॉर्ट टर्म बोरोविंग, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोविंग. यस और नो? तो बैंक ओवरड्राफ्ट विल कम इन शॉर्ट टर्म बोरोविंग. ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में क्या आएगा? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. ये दोनों का टोटलिंग आपका ट्रेड पेबल्स में आएगा. देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन. व्हाट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन? शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब यू नो प्रोपोज डिविडेंड के लिए आपने कुछ प्रोविजन किया है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स किया हुआ है. यस. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट. सो ये प्रोविजंस में आएगा. और अब ये जिस आइटम को ये 3 जगह पे जगह नहीं मिली है वो करंट लायबिलिटीज में आएगा. सो आप जब प्रॉब्लम करोगे तो आपको ये देखना है शॉर्ट टर्म है, करंट लायबिलिटी है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो नॉन करंट लायबिलिटीज में जाएगा. शॉर्ट टर्म में तो आपको देखना है भाई यहाँ आएगा, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल आएगा. यहाँ पे जिधर भी यू नो वर्ड बोरोविंग ये प्रोविजंस आएगा. It is not borrowing, it is provision. Let me make a changes here. Typing error which I have corrected it. It is short term provision. So यहाँ पे क्या आएगा आपका? Short term provisions आएगा. So again I am repeating. Current liability में short term borrowing में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आता है. Trade payable में creditors, bills payable. शॉर्ट टर्म प्रोविजन यानी जिस भी चीज के आगे वर्ड प्रोविजन होगा वो सब यहाँ पे आएगा. जो बेचारे को कहीं पे भी जगह नहीं मिली वो करंट लायबिलिटी में आएगा. बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द लायबिलिटीज पार्ट. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट. बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 parts. व्हाट आर द 2 parts? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज. सेकंड इज एसेट. इक्विटीज लायबिलिटीज डिवाइडेड इनटू 3 parts. Shareholder fund, non-current liability, current liability. Okay. Now let's go and see the asset part. Now asset is divided only in 2 parts. They are non-current asset and current assets. Again current asset I'll say what do you mean by current? जो daily use में आता है, जिसके balance every now and then change होते रहेंगे. Non-current asset मतलब जिसको आप once in a blue moon आपने एक invest किया है. जैसे आपने जब building start किया था, आपने land and building खरीदा, plant and machine. So every time you're not buying that asset. Only once in a 10 years, 15 years you buy the assets. Okay. So that is non-current assets and then you have a current asset. Again non-current assets are divided into 2 parts. Fixed asset and investment. Fixed asset means you have tangible asset and intangible asset. I think everybody knows what is the intangible asset. Yes, intangible asset का example बोलो students. Goodwill, trademarks, yes, patents, copyrights. They all are intangible asset. Tangible asset means
लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अगर इनका डेफिनेशन बोलूं तो एसेट विच कैन बी सीइंग एंड टच इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट. Intangible means you cannot see, you cannot touch, but that has a value in the market, so that is called as intangible asset. Biggest example is goodwill. Goodwill is the biggest example of इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मत सी, हम भी किसी और के कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते, हाँ या ना? सो दैट इज दिस इन्वेस्टमेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट वेयर यू हैव इन्वेस्टेड इन सम अदर कंपनी. दैट इन्वेस्टमेंट विल कम हियर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट. सी नाउ, इन्वेस्टमेंट अगर आपने अपनी मर्जी से किया है, दैट इज इन्वेस्टमेंट. करंट मतलब बहुत सी बार बिजनेसमैन लोग बोलते हैं भाई मेरे साथ बिजनेस करना है तो मेरे कंपनी में इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मैं बिजनेस नहीं करूंगा. दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट. और वो सेपरेटली आपको आराम से प्रॉब्लम में पता चली जाएगा ये करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. इन्वेंटरीज. इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक. यहाँ पे आप वर्ड इन्वेंटरीज लिखोगे, अभी तक आप उसको वर्ड स्टॉक के नाम से जान रहे थे, सो यहाँ पे आएगा ट्रेड पेएबल. बोलो पेएबल मतलब क्या आएगा आपका? डेटर्स एंड क्रेडिट. अगेन यहाँ पे देयर इज अ टाइपिंग एरर, इट इज ट्रेड रिसीवेबल. ओके बच्चों, आई एम नॉट मेकिंग चेंजेस, आप लिख लेना. इट इज ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल मतलब आपको जो आने वाला है, दैट इज डेटर्स एंड क्रेडिट, सॉरी डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. Then you have cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent का मतलब क्या है आपका बच्चों? जो पैसा है, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये यहाँ पे आएगा. और बाकी जिस एसेट को कहीं पे भी जगह नहीं मिली वो यहाँ पे आएगा. शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस. इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेंट्री आपका स्टॉक आ गया, डेटर्स और बिल रिसीवेबल यहाँ आ गया, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस यहाँ पे आएगा, और जो बच गया वो बंदा यहाँ पे आएगा. ओके, सो इस तरीके से are you getting me? This तरीके से you have been completing your balance sheet. Again, now I will show you this pro forma of. Now see, यहाँ पे मैंने pro forma बनाया है, इसको आपको मैं भेजूंगी जो आप अच्छे से कर लोगे. Now see, यहाँ पे देखो बैलेंस शीट का मैंने लिखा, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे. ये आपका प्रो फॉर्मा होगा, आपको ये हमेशा याद रखना है. सो देखो बैलेंस शीट में आएगा पर्टिकुलर नोट अमाउंट. नाउ सी, यहाँ पे एनी आइटम जिसका दो चीजें होगी उसका हम नोट्स हमेशा बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 आएगा. नाउ सी, मैंने आपको क्या बोला, बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज एंड एसेट. दिखा 2 पार्ट. अगेन फिर बैलेंस इक्विटीज एंड लायबिलिटीज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स. शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी. Equity fund is again divided in 2 parts, share capital, reserves and surplus. Non-term current liability में हम लिखा long term liability है, long term provisions. Current liability में short term liability, trade payable, current liability and short term liability. Again asset को मैंने क्या बोला, 2 पार्ट में है, non current asset और current asset. Non current में हमने बोला fixed asset, tangible asset, intangible assets and investment. Okay, तो करंट नॉन करंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट. तो एसेट 2 पार्ट में है, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट. करेक्ट? चलो एक साथ में बता दे. अभी यहाँ पे फिर करंट एसेट के अंदर देखो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि नहीं, क्या लिखा है? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, short term loan and advances and other current assets. Okay student, this is a way you are going to have your pro forma. So याद रखिएगा आपका बैलेंस शीट जो होगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. और I'll always say that आपको पता है कि आपको अगर बैलेंस शीट पूछा गया है तो ये pro forma पहले कॉपी कर लो. अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसमें से एक आध आइटम नहीं होगा तो हम वहां पे नील लिख देंगे. आइटम होगा तो हमें तो वो उसको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा भरते जाना है, हाँ या ना? यस, तो फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा हम इसको भरते जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलो बाय दिस आई एम कंप्लीटिंग माय लेक्चर. थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग इट. एंड अगेन आई से यू प्रोफॉर्मा को अच्छी तरह से बाय हार्ट कर लेना, अच्छे से लिख लेना.
2-3 बार लिख के उसको याद कर लेना ताकि आपको ये प्रोफार्मा दिमाग में अच्छे से रजिस्टर हो जाए, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स भी होगा, हमको यही प्रोफार्मा करना है। यहाँ पे लिमिटेड होगा, फाइनल अकाउंट में बहुत डीपली करना है, लेकिन 2 चैप्टर्स के अंदर आपको इतना ही लिमिटेड करना है, तो इतना अच्छे से याद कर लेना। ओके, चलो, थैंक यू।